Assalamu alaikum. I am Abdus Burgil trying to clarify the concept of fundamentals of welfare economics, फलाही मईशत के बुनियादी सुतून, which are efficiency, market failure and equity. The government spokespersons and agents of political parties normally say they want to make this nation like Riyasat-e-Madina. My dear listeners, you will have to check this political slogan under this lecture criteria. If their slogan is backed with the concept discussed here, then they are on the right path and they really want to make this Riyasat-e-Madina. Otherwise, that is just mazhab ka card they are going to play with their people. After having 3 sessions on fundamentals of welfare economics, which are efficiency, market failure and equity, you will be able to describe Riyasat-e-Madina like Falahi Riyasat by your own self. Okay, this time we will cover the first pillar of market efficiency. In the next lectures we will be covering market failure and equity. Before going to efficiency, we have to clarify the concept of welfare, which means falah. Welfare is the state of good health, happiness and comfort of financial assistance from the government. An example of welfare is having food and lodging during a time of severe hardships, as in this panic situation of COVID-19. Welfare economics is the housing providing by the government. Lodging means Qiyam-o-Ta'am, as it has been described in welfare definition. So the level of housing, role and level of income, job satisfaction, cost of living, employment prospectus and education level, life expectancy, happiness level and environment, air pollution. Welfare economics is defined as the branch of economics that studies how the distribution of income, resource allocation, goods affect the economic welfare. An example of welfare economics is the study of how certain health services help bridge the barrier between different classes of people. So if we come towards the market efficiency, there are 2 theorems. Theorem 1 is competitive equilibrium and the other is the efficient allocation of resources. Theorem 1 is competitive equilibrium leads to efficient allocation of resources. Theorem 2 is efficient allocation of resources leads to competitive equilibrium. I think before going in the details, you must know about these economic terminologies, which are laissez-faire, ceteris paribus, economic problem, opportunity cost, invisible hand, market forces. These are the simple concept of economics. So the thing is, the first theorem is competitive equilibrium leads to efficient allocation of resources, which means, as Dr. Tarman introduced a degree that is MPhil leading to PhD, कि अगर आप MPhil में admission लेते हैं तो that would be leading towards PhD. So in the same case is here कि अगर competitive equilibrium आप achieve कर लेते हैं तो वो आपको efficient allocation of resources की तरफ ले जाता है, और अगर आप efficient allocation of resources का टारगेट हासिल करते हैं तो आपको competitive equilibrium की तरफ ले जाता है. So market efficiency इंश्योर करने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए. पहली competitive equilibrium और दूसरी efficient allocation of resources. तो हम इन 2 ही चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. पहला है competitive equilibrium. तो what is competitive equilibrium? Where producers maximizing profits and consumers maximizes utilities, set price and quantity in competitive market. Competitive market क्या है? यहाँ पर perfect competition होता है, वो competitive markets होती हैं. अब perfect competition कहाँ पे होता है? उसके लिए 10 चीज़ें, यहाँ पे 10 चीज़ें बयान की गई हैं कि 10 conditions हैं. अगर वो fulfill होती हैं तो perfect competition होता है, और अगर परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है तो इसका मतलब है कि कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम होता है. तो परफेक्ट नॉलेज विद नो टाइम लैग, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए और इसमें टाइम लैग नहीं होना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचने के लिए वो क्लियर होना चाहिए कि जी
अगर इस मार्केट के अंदर एक प्राइस चेंज हो रही है तो दूसरी मार्केट के अंदर भी पता होना चाहिए लोगों को, ताकि कोई एक्सप्लॉइटेशंस ना कर सका। और इसी की बेस पे फिर रैशनल डिसीजंस होती हैं। जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, कंज्यूमर्स टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी एंड प्रोड्यूसर्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। और ये कब होता है कि जब परफेक्ट नॉलेज हो और उसमें टाइम लैग कोई ना हो एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुँचने के लिए। और नंबर 3 पे है नो बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट, कि अगर कोई फॉर्म इंडस्ट्री के अंदर इंटर होना चाह रही है या एग्जिट करना चाह रही है तो उसके लिए बैरियर्स कोई ना हो। और उसके बाद नंबर 4 पे है होमोजीनियस गुड्स, के जो चीज़ें हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोटरसाइकिल, तो कोई न्यू टेक्नोलॉजी इस तरह की ना आ जाए कि दूसरे मोटरसाइकिल के साथ उसका कंपटीशन ही ना रहे, बल्कि एक ही तरह की टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए ताकि उनका आपस में कंपटीशन लेवल भी मेंटेन हो रहा हो। तो तभी परफेक्ट कंपटीशन होगा कि जब होमोजीनियस गुड्स होंगी। और होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ इनपुट, मोनोप्सोनी, यू नो अबाउट द मोनोप्सोनी, कि अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कोई टेक्निकल किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो दूसरे लोगों के पास ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मोनोप्सोनी नहीं बल्कि सबके पास एक जैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और होमोजीनियस इनपुट्स जो है वो सबके पास मौजूद होनी चाहिए। नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस एक्सेप्ट टू मेक मार्केट कंपटीशन, कि जो कम्पिटिटिव मार्केट्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा लेसिस फेयर इकॉनमी होनी चाहिए। जैसे हमने पहले इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर पहली चीज़ लिखी लेसिस फेयर, तो लेसिस फेयर मीन्स नो इंटरवेंशन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो अप टू सिर्फ इकॉनमी जो है उसको कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाने के लिए होनी चाहिए, उसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है वो अचीव होने जा रहा है और मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है, अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन सिर्फ इस हद तक हो कि वो उसको जो इकॉनमी है उसको कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाने के लिए हो। कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम मींस कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी यूटिलिटीज मैक्सिमाइज करते हैं, और वाइल डूइंग दिस दे सेट इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लेवल। तो यहाँ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए होनी चाहिए कि ऊपर भी हमने चीज़ें के परफेक्ट नॉलेज प्रिवेल कर रहा हो, टाइम लैग ना हो, और कंज्यूमर्स इन्हीं की बेस पे रैशनल डिसीजन कर रही हों, और एंट्री और लेवल्स एग्जिट लेवल्स बैरियर्स कोई ना हो, फ्री बैरियर हो। क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं कि इफ़ समबॉडी इज़ गोइंग टू ओपन अ क्लिनिक टू मेक मेडिकल प्रैक्टिस, ही इज़ इन नीड ऑफ हैविंग MBBS degree, or if somebody is going to make a construction project, he is in need of having engineering degree। तो क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन सच लाइक फॉर्म्स के लिए या लोगों के लिए कोई ऐसे बैरियर्स नहीं हो सकते कि जब कोई छोड़ना चाहे एवरीबॉडी इज़ फ्री to enter and leave whenever he want to enter the industry, he can enter। लाइसेंसिंग हो सकती है, लाइसेंस हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बिल्कुल मुमानत नहीं हो सकती कि इस वक्त कोई इंडस्ट्री में दाखिल हो सकता है और इस वक्त इंडस्ट्री से को छोड़ सकता है, इससे पहले नहीं छोड़ सकता। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन सिर्फ इन्हीं चीज़ों को इंश्योर करने के लिए होती है, इससे ज़्यादा जो मोर देन दैट ऑफ इट देयर इज़ नो नीड टू मेक गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। तो ये टॉपिक भी हम इसीलिए पढ़ रहे हैं सारा कि जो फंडामेंटल्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, बेसिक पर्पस इसका यही है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, हाउ द गवर्नमेंट विल बी इंटरवीनिंग, व्हेन शुड मेक इंटरवेंशन एंड हाउ गवर्नमेंट शुड मेक इंटरवेंशन। यही चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट की इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवेंशन करेगी, कब करेगी और क्या कंडीशंस फुलफिल करने के लिए करेगी, और कब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके जो दो ही चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम के लिए और एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। तो कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में जो 7 पॉइंट है वो फॉर्म जो है वो जस्ट प्राइस टेकर होंगी और प्राइस मेकर नहीं होगी। प्राइस जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर होगी, लेकिन फर्म्स जो हैं वो जस्ट प्राइस टेकर होंगी। जैसे कि हम यहाँ पे ग्राफ में भी देख रहे हैं कि जो राइट साइड पे ग्राफ है वो फर्म्स का परफेक्ट कंपटीशन के अंडर है कि यहाँ पे सप्लाई और डिमांड साइड इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे एक प्राइस और क्वांटिटी लेवल सेट हो रहा है, ये इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। और जो लेफ्ट साइड पे ग्राफ है वहाँ पे फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, वो जस्ट उतनी ही प्राइस ले रही है जो कि उसकी मार्जिनल कास्ट को एवरेज रेवेन्यू टच कर रहे हैं।
यानी जितनी नेक्स्ट मार्जिनल कोई चीज़ प्रीपेड प्रोडक्शन के लिए जो जितनी कॉस्ट आ रही है उसकी प्राइस भी उतनी ही सेट कर दी गई है, उससे ज़्यादा सेट नहीं की। उसमें मैनेजेरियल सर्विसेज कॉस्ट भी होती हैं, तो इसके अलावा कोई ऐसी कॉस्ट नहीं होती, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये ग्राफ भी यही बता रहा है कि जो फर्म्स हैं जस्ट प्राइस टेकर होती हैं और वो अपनी एवरेज कॉस्ट के ऊपर, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर ही एवरेज रेवेन्यू सेट करते हुए प्राइस टेकर का काम कर रही होती हैं। नंबर 8 पे है कि मैनी फॉर्म्स टू मेक अ मार्केट, ये उसी वक्त होता है जब कोई बैरियर्स ना हो एंट्री लेवल पे। तो एक फॉर्म होगी तो वो मोनोपोली हो जाएगी, एक फॉर्म नहीं होनी चाहिए बल्कि मैनी फॉर्म्स होनी चाहिए जो कि उस वक्त कंपटीशन में होंगी। और नंबर 9 पे हमारे पास जो है वो यही है कि नो एक्सटर्नलिटीज़, कोई एक्सटर्नलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। और नंबर 10 पे जो है वो हमारे पास यही है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए, जैसे हमने पहले ग्राफ में भी डिस्कस कर लिया है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स होनी चाहिए, कोई एक्सटर्नलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी तरफ से कोई दबाव नहीं होना चाहिए कॉस्ट पे और बेनिफिट्स पे। और लाइक मार्केट फोर्सेस को ही वर्क करना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस हैं, वही डिटरमिन करती हैं कि प्राइस क्या होगी और क्वांटिटी लेवल क्या होगा, एक्सटर्नलिटीज़ इसके अलावा कोई नहीं होंगी। और यहाँ पर मैंने पेंटेड अ ग्राफ फॉर द होल समरी ऑफ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन के लिए दे दिया है, और इसमें यही जो चीज़ें हमने ऊपर सारी डिस्कस की हैं वो यहाँ पे लिख दी गई हैं कि एक जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसके अंदर मार्केट फोर्सेस कैसे वर्क कर रही होती हैं और इंडिपेंडेंटली कैसे वहाँ पे एक प्राइस लेवल और क्वांटिटी लेवल डिटर्मन कर रही होती हैं। और जब वो एक प्राइस लेवल क्वांटिटी लेवल इंडिपेंडेंटली डिटर्मन कर लेती हैं तो उसका मतलब यही होता है कि एफिशिएंट एलोकेशन, क्योंकि यही चीज़ जो है मार्केट इक्विलिब्रियम कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम लीड्स टू एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जब एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है तो फिर हम कहते हैं कि जो फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो मेंटेन हो गया है हमारा। तो ये इसका मतलब है कि ये फर्स्ट स्टार्ट होता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स की तरफ जाने के लिए, टू मेक एन इकॉनमी वेलफेयर इकॉनमी, टू कन्वर्ट एन इकॉनमी इनटू अ वेलफेयर इकॉनमी। तो अगर ये 10 चीज़ें इंश्योर कर लेती है गवर्नमेंट, ये बिल्कुल लिस्ट है, एक फिंगर टिप्स पे है, लिस्ट में है, अगर ये गवर्नमेंट इंश्योर कर लेती है इन चीज़ों को और गवर्नमेंट इन्वेंशन का लेवल सिर्फ यहीं तक रखती है, तो दैट मीन्स के वो अपना जो स्लोगन है कि हम अपनी मईशत को फलाही मईशत बनाने जा रही हैं, उस स्लोगन को फुलफिल इन रियल सेंस कर रही है। और अगर उसका इस तरफ ध्यान नहीं है बल्कि उसका एजेंडा कोई और है और कोई और लाइक रिवेंज टेकिंग लाइक व्हाटसोएवर, और एजेंडा कोई और है, तो दैट मीन्स के दैट इज़ नॉट गोइंग टू फुलफिल द मेंटेनिंग द फंडामेंटल्स ऑफ मेकिंग एन इकॉनमी वेलफेयर इकॉनमी और कन्वर्टिंग एन इकॉनमी इनटू अ वेलफेयर इकॉनमी। और इसमें जो वेलफेयर का कंसेप्ट है उसको हम इस कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम के साथ मिला के पढ़ेंगे तो हमें इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम के ज़रिए से हम वो तमाम चीज़ें जो हमने ऊपर वेलफेयर में डिस्कस की हैं कैसे वो अचीव हो जाती हैं। इसके जो नेक्स्ट है फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, विच इज़ द अदर साइड ऑफ द फर्स्ट थ्योरम, और यू कैन से द फर्स्ट साइड ऑफ द सेकंड थ्योरम, कि एक साइड पे जैसे कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम था तो दूसरी एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से। इसके अंदर मैं 3 तरीके से इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट मैंने इसको क्लासिकल का नाम दिया है, वैसे ये एडम स्मिथ थ्योरी है जिसने सोशल वेलफेयर फंक्शंस 3 तरह के बयान किए हैं, कंज्यूमिंग इंडिफरेंस कर्व्स एंड बजट लाइन कंसेप्ट्स एंड ऑर्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल अप्रोच यू नो अबाउट दैट कि ऑर्डिनल अप्रोच होती है कि यहाँ पर हम प्रेफरेंसेस को ऑर्डर करते हैं कि चीज़ें जो है उसको हम गिनती में शुमार क्वांटिटीज़ में नहीं लेके आते बल्कि कहते हैं ये ज़्यादा बेहतर है, ये कम बेहतर है, ये नहीं बेहतर, लाइक इस तरह से हम उसको ऑर्डरिंग कर रहे होते हैं कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये उससे नीचे है, इस तरह से। तो इसमें उसने प्रोडक्शन की बात की है कि इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू इंक्रीज लेवल ऑफ वेलफेयर, कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होंगी तो यूटिलिटीज़ भी लोगों की ज़्यादा होंगी, जब लोग ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे होंगे, ज़्यादा यूटिलिटीज़ उनको मिल रही होंगी तो उनका डेफिनेटली वेलफेयर लेवल भी उस वक्त फिर ज़्यादा ही होगा। इसमें 3 रैंकिंग्स आएंगी जिसमें मोर प्रेफर्ड, लेस प्रेफर्ड, इनडिफरेंट होगा। आपने कुछ चीज़ें ये पढ़ी हुई हैं पहले से, तो हम इसको इंशाल्लाह यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद फिर दूसरी न्यू क्लासिकल है जो अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी है, ये कार्डिनल यूटिलिटी है। कार्डिनल यूटिलिटी होता है जिसमें हम शुमार करते हैं चीज़ों को, इसमें मॉनिटरी यूनिट्स यूज़ होते हैं।
मॉनेटरी यूनिट्स ऑफ यूटिलिटीज एंड मॉनेटरी यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट्स, कि जी अगर एक बंदे के पास इतनी ये यूटिलिटी इतनी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, काउंट करते हैं, और दूसरा बंदा इतनी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब जो ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर रहा है उसका लेवल ज़्यादा है वेलफेयर का, और जो कम कर रहा है उसका लेवल कम है। और मॉनेटरी प्रॉफिट मीन इफ फर्म इज अर्निंग 1 million per month and the other firm is earning 2 million per month, both of the firms are compared, and the firm who is earning more, that is yielding more level of welfare, और इसी तरह से जो कम कर रही है तो उसका कम वेलफेयर लेवल है। इसमें कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ेंगे, और उसी कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस को हम मिला के कहेंगे कि टोटल इकोनॉमिक सरप्लस है, सोशल इकोनॉमिक सरप्लस है, यानी इकोनॉमी का जो ओवरऑल आ रहा है सरप्लस फिर ये आ रहा है। और इसमें फिर नंबर 3 जो है वो पेरेटो एफिशिएंसी की बात करेंगे। सबसे पहले एडम स्मिथ की बात करेंगे, फिर अल्फ्रेड की बात करेंगे, फिर पेरेटो की बात करेंगे। ये तीनों बातें हम कर लेंगे तो हमारा कंसेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा, और वहीं पे आज का लेक्चर भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो हम नंबर 3 पे पेरेटो एफिशिएंसीज के अंदर जो बात कर रहे होंगे वो 3 कंडीशंस हैं पेरेटो एफिशिएंसी की। और फिर आपकी जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है एज पर HEC क्राइटेरिया फॉर पब्लिक फाइनेंस सब्जेक्ट ऑन बैचलर लेवल, BS के लिए जो HEC ने पब्लिक फाइनेंस के सब्जेक्ट के लिए कोर्स कंटेंट्स दिए हैं, उसके अंदर बुक जो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड बुक है उसके अंदर वेलफेयर एंड पेरेटो एफिशिएंसी है और इंडिविजुअलिज्म एंड पेरेटो एफिशिएंसी है। तो हम डिस्कस करेंगे शॉर्टली नॉट ब्रीफली कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स पेरेटो एफिशिएंसी के साथ कैसे वर्क करती है, और इंडिविजुअलिज्म जो है वो पेरेटो एफिशिएंसी के कैसे साथ वर्क करता है या उसको अगेंस्ट वर्क करता है, कैसे, हाउ, वी वुड बी डिस्कसिंग इट शॉर्टली नॉट ब्रीफली। और फिर सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन का एक फंक्शन है, जस्ट वो हम बयान कर देंगे। तो फर्स्ट जो चीज़ है यहाँ पर क्लासिकल एडम स्मिथ की, जिसमें 3 सोशल वेलफेयर फंक्शन उसने बयान किए हैं, उसकी पहली यूटिलिटी अप्रोच है कि जो सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज होती हैं वो सोशल वेलफेयर होता है। इसमें सोशल वेलफेयर इज अ फंक्शन ऑफ यूटिलिटी ऑफ A person प्लस यूटिलिटी ऑफ B person अप टू यूटिलिटी ऑफ Z person, कि वी कंबाइन द यूटिलिटीज ऑफ ऑल द पर्सन्स and we check the level of that utility and we determine the level of welfare। ये बर्गसन एंड समल्सन की थ्योरी है सोशल वेलफेयर फंक्शन के लिए कि यूटिलिटीज़ को मेजर करेंगे, यूटिलिटीज़ को ऐड अप करेंगे, उनका सम करेंगे, तो फिर हम बता सकते हैं कि वेलफेयर लेवल क्या है। उसके बाद एरोज सोशल वेलफेयर फंक्शन है, जिसमें उसने कहा है कि ऑल सेट ऑफ पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व्स, इंडिफरेंस मैप होता है, यू वेल अवेयर ऑफ इट, इसमें डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इंडिफरेंस का मींस डिफरेंट लेवल्स होते हैं सेटिस्फेक्शन के, तो उसमें से ऑल पॉसिबल सेट ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल्स अलाउ होते हैं कस्टमर को कि वो जिनको भी चूज़ कर ले, और कोई किसी तरह से एक्सटर्नलिटीज़ नहीं होती, इसमें से एक्सटर्नल दबाव नहीं होता, और इंडिपेंडेंटली वो अपना जो भी इंडिफरेंस कर्व को चूज़ करना चाहे और उसको कंपेयर करना, मैच करना चाहे बजट लाइन के साथ, वो उसको कंपेयर और मैच कर सकता है अपनी बजट लाइन के साथ। और फिर यहाँ पर कार्डिनल सोशल वेलफेयर फंक्शन है, ये इनकम अप्रोच है। एज प्रीवियसली वी वर डिस्कसिंग द बर्गसन सोशल वेलफेयर फंक्शन, दैट वाज द यूटिलिटी अप्रोच, but it's the income approach. The first one is the utility approach and the third one is the income approach. इसमें उसने कहा है कि अगर तमाम इकोनॉमी के अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं उन तमाम की इनकम्स को मेजर कर लिया जाए और उनका एडअप कर लिया जाए तो वो वेलफेयर फंक्शन है कि समेशन ऑफ Y1 टू अप टू YZ मीन्स जितनी भी इनकम्स हैं तमाम लोगों की इकोनॉमी के अंदर उनका एडअप जो होगा वो वेलफेयर होगा। The second thing is the per capita income। उन्होंने इसको रिफाइन किया कि बेहतर यह है कि पर कैपिटा इनकम को देख लिया जाए, W इज इक्वल टू 1/n समेशन Y बार, कि जो एवरेज इनकम है लोगों की, जो पर कैपिटा इनकम है उसको देख लिया जाए तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस इकॉनमी के अंदर वेलफेयर लेवल क्या है। फिर उसने इसको थोड़ा सा और रिफाइन किया और मैक्सिमा मिन का नाम दिया इसको, मैक्सिमा मिन। W इज इक्वल टू मिनिमम Y1 Y2 अप टू YZ। दैट मीन्स कि जो भी मिनिमम लेवल पे लोग बैठे हुए हैं इनकम के मिनिमम लेवल पे, उनको अगर हम देख लें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का वेलफेयर लेवल क्या है, और उसी को हम इंक्रीज़ कर दें तो वहाँ के वेलफेयर लेवल को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसको मैक्सिमम मिन का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है कि जो मिनिमम लोगों की इनकम है, जैसे कि मिनिमम वेज लॉज बनाए जाते हैं कि उनकी जो मिनिमम वेज लॉज हैं वो यही बताते हैं कि इससे कम इनकम नहीं होनी चाहिए, और उनको इन्हांसमेंट किया, उनको इंक्रीज़ किया जाता है ताकि वेलफेयर लेवल इंक्रीज़ हो जाए। तो ये एक इनकम अप्रोच है। और नंबर 4 पे उन्होंने कहा कि W इज इक्वल टू Y into 1 - G। G इज हेयर जिनिंग कोफिशिएंट, दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी,
कि जो इनइक्वालिटी लेवल है उसको पर कैपिटा इनकम लेवल के साथ मेजर किया जाता है कि जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो उनकी नीड्स हैं, जो कि फुलफिल होनी चाहिए, उनको देखा जाता है वो कितनी दूर हैं, वो अपने जो होनी चाहिए, जो मीन पॉइंट है, मीन्स के जहाँ पे सब लोगों की इनकम को होना चाहिए, ताकि ये हम कहें कि ये सब लोगों की जो नीड्स हैं और उनको फैसिलिटेशन लेवल मिल रहा है, उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो वो उस पॉइंट से कितने लोग दूर हैं, उस पर कैपिटा इनकम उससे कितनी दूर है. Now here the second approach, that was the new classical approach, you can say Alfred Marshall approach, के consumption, consumer और producer surplus को देखा जाता है. You know about the consumer and producer surplus, के जो डिमांड लाइन के नीचे नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं प्राइस के ऊपर, लाइक यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे लिखा गया है और डिमांड फंक्शन यहाँ जाकर टच कर रहा है. अगर इसे थोड़ा सा नीचे करके हम एक पॉइंट ले लें प्राइस का और उसको डिमांड पे ड्रा करें और उसको नीचे क्वांटिटी की तरफ ले आएँ, तो कंज्यूमर इज विलिंग टू पे इवन दैट हाई लेवल ऑफ प्राइस. लेकिन ड्यू टू कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, जो कि हमने पहले कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम डिस्कस किया परफेक्ट कंपटीशन के अंडर, उसकी वजह से एक प्राइस ऐसी सेट हो रही है जो कि उस प्राइस से नीचे है. पहले वो प्राइस हाई देने के लिए तैयार था और क्वांटिटी भी कम लेने के लिए तैयार था, लेकिन अब उसको प्राइस कम मिल रही है और क्वांटिटी भी ज़्यादा मिल रही है. एक जो कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम के अंडर जो प्राइस और क्वांटिटी लेवल सेट हुआ है उसके अंदर, तो अब ये जो डिफरेंस है जो देने के लिए तैयार था प्राइस और जो अब दे रहा है उस क्वांटिटी के लिए, ये डिफरेंस शेडेड एरिया, जो अपर शेडेड एरिया है डिमांड फंक्शन से नीचे नीचे, ये कंज्यूमर सरप्लस होता है कि जो कंज्यूमर को इजाफी मिलता है इन सेंस ऑफ प्राइस. इन सेंस ऑफ प्राइस ज़्यादा मिलने से मुराद है कि उसको कम प्राइस जितनी पे करनी पड़ी है, एंड इन सेंस ऑफ क्वांटिटी कि उसको जितनी ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है. इसी तरह से जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो सप्लाई लाइन के ऊपर ऊपर वो एरिया होता है कि जो कंज्यूमर का, जो प्रोड्यूसर कम प्राइस लेने के लिए भी तैयार था, लाइक इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो रीजन पॉइंट, जो सप्लाई लाइन है आप देख रहे हैं कि रीजन से स्टार्ट हो रही है. अगर इसे थोड़ा सा ऊपर हम एक पॉइंट ले लें जो कि लो लेवल ऑफ प्राइस है और उसको क्वांटिटी के ऊपर ड्रा कर लें, तो कंज्यूमर तैयार था उतनी प्राइस लेके उतनी क्वांटिटी देने के लिए, लेकिन कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम की वजह से उसको P1 पे हाई प्राइस मिल रही है. तो ये ब्लू एरिया शेडेड है, जीरो से स्टार्ट होके P1 तक, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है कि वो कम प्राइस लेने के लिए तैयार था सप्लाई लाइन के ऊपर ऊपर प्राइस को जो टच कर रही लाइन, लेकिन कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम के अंदर उसको ज़्यादा प्राइस मिल रही है चीज़ों की, तो ये जो उसको सरप्लस मिल रहा है प्राइस के अंदर वो उसके लिए प्रोड्यूसर सरप्लस है. और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो फिर मार्केट का सरप्लस टोटल बन जाता है, वेलफेयर लेवल, सोशल वेलफेयर लेवल बन जाता है. टोटल सरप्लस इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, और यही वेलफेयर लेवल है. तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि ऐसा कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम आए कि जिसमें जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसमें उन दोनों को ऐड किया जाए, जो कंज्यूमर साइड पे भी सरप्लस ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल रहा हो और प्रोड्यूसर साइड पे भी उनको सरप्लस ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा हो. ये मैंने आपको पहले भी एक आपको बताया है इसको कि कैसे ये हो सकता है, कैसे गवर्नमेंट इसको इंश्योर कर सकती है. और अगर इसी पॉइंट को जो इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पे प्राइस लेवल और क्वांटिटी लेवल इकट्ठा एक ही जगह पे आ रहा है, इसको थोड़ा सा अगर आगे की तरफ ले जाएं, इनकी स्लोप्स को चेंज कर लें, तो इस एरिया को इंक्रीज भी किया जा सकता है. तो इस एरिया को कितना मैक्सिमम इंक्रीज किया जा सकता है, यही बेसिकली गवर्नमेंट का टारगेट होता है और यही गवर्नमेंट इंटरवेंशन का पर्पज भी होता है. तो अल्फ्रेड मार्शल की जो थ्योरी है वो सिर्फ इतनी ही है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस को मैक्सिमम किया जाए ताकि टोटल सरप्लस इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए. अब जो तीसरा है वो परेटो एफिशिएंसी है, कि जो एफिशिएंसी को हम डिस्कस कर रहे थे कि तीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे, एक एडम स्मिथ के साथ, एक अल्फ्रेड के साथ और एक परेटो के साथ. तो ये परेटो एफिशिएंसी की तीन कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर एफिशिएंसी लेवल मेंटेन हो रहा है. परेटो एफिशिएंसी की तीन कंडीशंस हैं, एक्सचेंज एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी और प्रोडक्ट मिक्स एफिशिएंसी. Exchange efficiency is margin rate of substitution between any two goods must be same for all individuals. No consumer can be better off without other laws. It means कि अगर आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर एक कंज्यूमर एक एप्पल के बदले में एक ऑरेंज देने के लिए तैयार है और दूसरा कंज्यूमर एक ऑरेंज के बदले में 3 एप्पल देने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर ए है वो 1 to 1 है, एक ऑरेंज के बदले में एक एप्पल, लेकिन जो कंज्यूमर 2 है वो एक ऑरेंज के बदले में 3 एप्पल देने के लिए तैयार है. अब जो कंज्यूमर 2 है वो 3 एप्पल के बदले में 2 एप्पल दे देता है और जो कंज्यूमर 1 है उसको 2 मिल जाते हैं. वो तो एक एप्पल भी लेके एक ऑरेंज देने के लिए तैयार था ना, लेकिन उसको 2 एप्पल मिल रहे हैं
और जो कंज्यूमर 1 है वो 3 एप्पल देने के लिए तैयार था लेकिन वो 2 एप्पल दे रहा है। तो अब देखें दोनों एक बेटर ऑफ कंडीशन में आ गए। तो जो एक्सचेंज एफिशिएंसी है वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको इस कंडीशन में आ जाना चाहिए कि तमाम जो है वो एक एप्पल के बदले में एक ऑरेंज ही देने के लिए तैयार हों। ये ऐसा ही होगा कि जब वो एक चीज़ ट्रांसफर होती जाएगी दूसरे की तरफ, तो आप MRS का कंसेप्ट जानते हैं, तो फिर वो एक ऐसा जैसे जैसे मोर एंड मोर वो लेता जाएगा तो लेस एंड लेस सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता चला जाएगा। तो MRS लेवल एक ऐसा आएगा कि जैसे पहला कंज्यूमर है 1-to-1 कंडीशन में, दूसरा कंज्यूमर भी इसी कंडीशन में आ जाएगा 1-to-1 कंडीशन में कि वो भी एक ऑरेंज के बदले में एक एप्पल ही सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार। पहले उसने 3 सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, उसने 2 कर दिए, अब वो 2 करने के लिए तैयार होगा, फिर वो 1 करेगा। अब वो इस कंडीशन में होगा कि एक ही सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा। कंज्यूमर 1 जो होगा वो भी एक एप्पल के बदले में एक ऑरेंज सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा, और कंज्यूमर B जो होगा वो भी एक एप्पल के बदले में एक एप्पल ऑरेंज के बदले में सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा। तो इसको हम कहेंगे कि एक्सचेंज एफिशिएंसी की जो कंडीशन है वो मेंटेन हो गई है, और वाकई स्पेयर जो रिसोर्सेज नहीं पड़े हुए बल्कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। Number second is production efficiency. That means MRTS between inputs must be same for all forms. के जो inputs हैं जो like labor है 4 factor production में जो labor है input एक, वो तमाम फॉर्म्स के लिए एक ही हो। अगर एक फॉर्म एक जगह से लेबर दूसरी जगह पे जा रही है तो उसकी जो वेजेस हैं वो एक ही तरह की हों, और मुख्तलिफ फॉर्म्स के लिए जो डिफरेंट रेट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर एक फॉर्म एक लेबर को एक इनपुट को हटा के दूसरे इनपुट को वहाँ पे लगा रही है तो उसको सेम सेक्रीफाइस फर्म को भी करना पड़ रहा हो, और जो लेबर्स हैं जो इनपुट्स हैं वो भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं तो वो भी उसी सेम MRTS के साथ जा रही हों। कि जिस तरह से पीछे आपने पढ़ा कि MRS सेम होना चाहिए कि 1-to-1 एक के बदले में एक, इसी तरह से इनपुट्स के जो यूनिट्स हैं वो भी 1-to-1 होने चाहिए कि उसकी भी एक के बदले में एक ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि स्पेयर लेबर है, लेबर रिसोर्स स्पेयर है शायद, या फिर कैपिटल रिसोर्स स्पेयर है, या लाइक रिसोर्सेज स्पेयर है इनपुट्स के अंदर, जिसकी वजह से ये है तो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज शायद उस वाले से फिर इंश्योर नहीं होती। नंबर 3 पे प्रोडक्ट मिक्स एफिशिएंसी है। इसमें जो हमारी एक्सचेंज एफिशिएंसी शुड बी इक्वल टू प्रोडक्शन एफिशिएंसी। दैट मीन्स MR of transformation is equal to MRS. This occurs when it is impossible to increase production of one good without reducing the production of other good. किसी एक चीज़ की प्रोडक्शन कम करेंगे तो हम किसी दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स कि जो R&D है वो तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली एलोकेट किए जा चुके हैं, और कोई रिसोर्स स्पेयर नहीं है कि जी एक चीज़ की प्रोडक्शन कम किए बगैर हम दूसरी की, लाइक इफ आई एम अर्निंग सैलरी ऑफ 100 रुपीज़ तो सारे 100 के 100 मैंने कहीं ना कहीं कंजम्पशन पे लगाए हुए हैं। अब मुझे उसके में जो प्लेटो एफिशिएंसी है वो मेंटेन हुई है। अब जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है उसके अंदर अब जो हम टोटल देखते हैं कि एक हमारे पास प्रोडक्शन फ्रंटियर फंक्शन जो हम MN है, इसमें एक E पॉइंट है। इसका मतलब है कि अभी टोटल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स नहीं हुई बल्कि जो बिलो पॉइंट है D पॉइंट पे टोटल एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो चुकी हैं लेकिन प्रोडक्शन लेवल कम आ रहा है। Z पॉइंट ऐसा है कि जिसमें टोटल एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो चुकी हैं और वहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं यूटिलिटीज लेवल हैं वो भी मैक्सिमम है। मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है और मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी है। तो यही वो पॉइंट है जो कि प्रेटो ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का पॉइंट है, और यही वो पॉइंट है जहाँ पर इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का है। तो यही वो पॉइंट है कि यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो रही है जी पॉइंट के ऊपर, और सोशल इंडिफरेंस कर्व इसको टच कर रही है, यानी मैक्सिमम यूटिलिटी लेवल भी यहाँ पर ही है। तो दिस इज द लमसम समरी, होल समरी ऑफ अवर प्रीवियस होल लेक्चर, ये जो ग्राफ है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड प्लेटो ऑप्टिमलिटी। तो प्लेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशंस को मेंटेन करते हुए ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स को इंश्योर किया जा सकता है। तो इसलिए तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की तमाम तर जो कंडीशंस हमने डिस्कस की हैं वो मेंटेन होनी चाहिए, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, तो तभी हम कह सकते हैं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स की जो कंडीशन है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद इंडिविजुअलिज्म एंड प्लेटो एफिशिएंसी, मैंने आपको कहा था कि जैसे आपकी जो बुक है डिस्क्राइब्ड उसके ऊपर ये 2 पॉइंट्स हैं मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो इसमें इंडिविजुअलिज्म और प्लेटो एफिशिएंसी का कंसेप्ट यही है कि प्लेटो एफिशिएंसी इंश्योर कर रही होती है कि सोशल यानी टोटल जो इकॉनमी है उसका ओवरऑल कितना बेनिफिट हो रहा है। इंडिविजुअलिज्म के साथ ये समटाइम्स क्लैश कर जाती है। क्लैश इसलिए कि जो प्लेटो ऑप्टिमलिटी है दैट इंश्योर्स द सोशल मैक्सिमम वेलफेयर लेवल
और इंडिविजुअलिज्म जो है वो अपना पर्सनल देखता है. फॉर एग्जांपल इफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ रोड मेकिंग और वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, तो उन लोगों की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ख़राब होगी, वो जो क्रॉप्स अपनी ग्रो कर रहे हैं उनमें तो उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल इकॉनमी का फ़ायदा इसी में होता है कि वहाँ पे रोड को तैयार कर दिया जाए और उसको बना दिया जाए. तो जो प्रोडक्टिविटी मेंटेन की जा रही होती है तो उसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बाज़ का पीछे छोड़ दिया जाता है और उनको नहीं देखा जाता, क्योंकि होल सोसाइटी का जो इंटरेस्ट होता है उसको देखा जाता है और वेलफेयर लेवल को देखा जाता है, इंडिविजुअल्स लेवल की तरफ नहीं देखा जाता. इफ गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन लेवल्स यू कैन जज इट बाय योरसेल्फ वेरी इजीली. दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू मेंटेन द कंडीशंस ऑफ प्रोडक्टिविटी. दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स द वेलफेयर इकोनॉमिक्स. और अगर वो इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को नहीं देख रही बल्कि होल सोसाइटी यानी प्रोडक्टिविटी के में देख रही है, तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट इज गोइंग टूवर्ड्स द welfare economy. And it was whole from myself. You can see it repeatedly, and I think this is not very much difficult and prolonged. Thank you very much for sparing your time, for listening me, bearing me, and being with me for this time. Thank you, really, thank you very much, whole of you. Thank you.